الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ حلقہ بندیوں کی رپورٹ بما فارم 5 عوام الناس کی آگاہی کے لیے شائع کر دی گئی ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشاعت 27 ستمبر سے 26 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ حلقہ بندیوں پر اعتراضات 27 اکتوبر تک الیکشن کمیشن میں جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 اور سندھ میں 51 نشستیں ہوں گی۔ کے پی کے میں 45 جبکہ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 نشستیں ہوں گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عثمان خان سے۔ عثمان، بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ آ گیا ہے، ابتدائی حلقہ بندیوں کی باضابطہ منظوری بھی دے دی گئی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست وہ جاری کر دی ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات وہ 27 اکتوبر تک الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جا سکیں گے۔ جو اعتراضات ہوں گے وہ بذریعہ کوریئر یا ڈاک اور فیکس میں قابل قبول نہیں ہوں گے، جبکہ عوام الناس کے لیے وہ فارم 5 کو وہ شائع کر دیا ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں کی رپورٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اعلامیہ میں الیکشن کمیشن کے بتایا گیا ہے کہ ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشاعت 27 ستمبر سے 26 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات متعلقہ حلقے کا ووٹر کر سکتے ہیں، جبکہ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات 27 اکتوبر تک الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ اعتراضات دائر کرنے کے لیے متعلقہ جو حلقے کا ووٹر ہونا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضلع کے نقشے کا جات اور الیکشن کمیشن سے ضروری قیمت ادا کر کے لیے جا سکتے ہیں، جبکہ بذریعہ کوریئر اور ڈاک وہ یہ چیزیں وصول نہیں کی جا سکتی۔ جبکہ اعتراضات کے بعد حلقہ بندیوں کی جو حتمی فہرست ہے وہ 30 نومبر کو جاری ہوگی، جس کے بعد الیکشن کمیشن وہ 54 روز کا انتخابی پلان جاری کرے گا۔ جی عثمان ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ حلقہ بندیوں کی رپورٹ بما فارم 5 عوام الناس کی آگاہی کے لیے بھی شائع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات 27 اکتوبر تک الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 اور سندھ میں 51 نشستیں ہوں گی۔ کے پی کے میں 45 جبکہ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 نشستیں ہوں گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ ابتدائی حلقہ بندیوں کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ حلقہ بندیوں کی رپورٹ بما فارم 5 عوام الناس کی آگاہی کے لیے شائع۔ ابتدائی حلقہ بندیوں کے اشاعت 27 ستمبر سے 26 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ حلقہ بندیوں پر اعتراضات 27 اکتوبر تک الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جا سکتے ہیں، جبکہ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 اور سندھ میں 51 نشستیں ہوں گی۔ کے پی کے میں 45، بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 نشستیں ہوں گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہوں گی۔ اور اب بات کریں گے سونے کی قیمتوں کے حوالے سے۔ سونے کی قیمت میں تیسرے روز بھی ہزاروں روپے کی کمی آئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران سونا فی تولہ 3000 روپے سستا ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے فراز رمضان سے، بتائیے گا فراز۔ جی دیکھیے، سونے کی قیمتوں کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو سونے کی قیمتوں میں وہ معمول کے مطابق اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں سونے کی قیمت میں 3000 روپے کی کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ آج کے اگر تازہ ترین ریٹ کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو 24 کراٹ سونا 2,05,000 روپے تولہ وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 22 کراٹ سونے کی بات کرتے چلیں تو 22 کراٹ سونا وہ 1,87,917 روپے فی تولہ مارکیٹ میں وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ گرام کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو 24 کراٹ سونا وہ 17,500 روپے فی گرام، جبکہ 22 کراٹ سونے کی بات کرتے چلیں تو 22 کراٹ سونا وہ 16,000 روپے فی گرام مارکیٹ میں فروخت کیا جانے لگا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کی بات کرتے چلیں تو ایک ہفتے میں سونے کی قیمت میں وہ 17,000 روپے کی کمی وہ دیکھنے میں ملی ہے۔ گزشتہ روز بھی وہ سونا 3,000 روپے سستا ہوا تھا اور آج بھی سونے کی فی تولہ قیمت میں وہ 3,000 روپے کمی وہ دیکھنے میں ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ سونا مزید سستا ہونے کے چانسز ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سونے کو وہ مزید سستا ہونا چاہیے، کیونکہ سونا مہنگا ہونے کے باعث جو کسٹمر حضرات ہیں ان کی جو قوت خرید ہے وہ دن بدن متاثر ہو رہی تھی۔ اب سونا عوام کی وہ پہنچ میں آتا جا رہا ہے اور سونا مزید بھی سستا ہونے کے امکان۔ فراز رمضان آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رحیمیہ خان میں اسموک کی روک تھام کا مشن۔ اے سی وقاص ظفر کی اسموک پھیلانے والے بھٹا جات کے خلاف کارروائی۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے والے 6 بھٹا خشت سیل کر دیے گئے۔ رحیمیہ خان میں اسموک کی روک
रोकथाम का मिशन। एसी वकास जफर की स्मोक फैलाने वाले भट्टा जात के खिलाफ कार्रवाई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले 6 भट्टा सील कर दिए गए। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आपको बता रहे हैं कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रहीम यार खान में स्मोक की रोकथाम का मिशन। एसी वकास जफर की स्मोक फैलाने वाले भट्टा जात के खिलाफ कार्रवाई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले 6 भट्टा खिश्त सील कर दिए गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान का रेस्क्यू ऑपरेशन। भीख मांगते कचरा चुनते 3 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। बच्चों को शाह शम्स कॉलोनी से हिफाजती तहवील में ले लिया गया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल किया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लवाहिकीन की तलाश जारी है। लवाहिकीन की तलाश जारी है। आपको आगाह करें हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान का रेस्क्यू ऑपरेशन। भीख मांगते कचरा चुनते 3 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। बच्चों को शाह शम्स कॉलोनी से हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लवाहिकीन की तलाश भी जारी है। अहमदपुर शर्किया में मुस्तहिक खवातीन की रकूम से कटौती का सिलसिला। खवातीन ने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं। पीने के लिए पानी है और ना ही बैठने के लिए सायादार जगह। सारा दिन धूप में खड़ी रहती हैं, ऊपर से कटौती भी की जा रही है। अहमदपुर शर्किया में बेबस खवातीन की रकूम में कटौती का सिलसिला जारी। खवातीन ने बताया कि सेंटर का अमला शिकायत की सूरत में किस्त बंद कराने की धमकी देता है। मुस्तहिक खवातीन की इमदादी रकूम से 400 से लेकर 1000 तक कटौती की जा रही है। पैसा 5 पैसा कटे ने बेटे मैं आके चाहते हो आधे नोट तेरा नूठा नहीं लगता जी भाई 8,500 इतने में बेवा और आता 500 रुपया कट की देने। माइया बड़ी दूर दूर आई है कड़िया ने, ठीक है ना। किसी तो 500 कटौती हो रही है, किसी से 400, किसी से 300। मुस्तहिक खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर और असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया से माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन महर नईम के साथ खादम हुसैन, अहमदपुर शर्किया। मैप्को की निजकारी और मुलाजमीन के तबादले नामंजूर। डेरा गाजी खान में मैप्को मुलाजमीन इदारे की निजकारी के खिलाफ डट गए। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के ज़रिए तमाम एहतजाज और नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि मुनाफा बख्श इदारे की कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। डेरा गाजी खान में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के ज़ेरे एहतमाम मैप्को की निजकारी और मुलाजमीन के तबादलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुलाजमीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था मैप्को की निजकारी और मुलाजमीन के घरों से दूर तबादले किसी सूरत मंजूर नहीं। हम अपना कोई भी एक मजदूर भी अपने घर से दूर कभी नहीं जाने देंगे। बिल्कुल हम इंशाल्लाह डटे हुए हैं और इंशाल्लाह नहीं जाने देंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि मुनाफा बख्श इदारे की प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। स्टाफ की कमी के बावजूद 100% रिजल्ट दे रहे हैं। ये जो सबसे पहली कड़ी अफसरान को इन्होंने ट्रांसफर किया, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं उन अफसरान को भी वापस ट्रांसफर किया जाए। इसी तरह ये सबसे पहला काम कर रही है गवर्नमेंट। हम सबको समझ में आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, जो कि हम कतई तौर पर अपने इदारों की और मुनाफा बख्श इदारों की कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। मुजाहिरीन ने छोटे मुलाजमीन के घरों से दूर तबादले रोकने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। जहानिया में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। शहरी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में घरों, बाजारों और मसाजिद को सजाने और खरीदारी में मसरूफ हैं। हानिया में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में तेजी आ गई। शहरियों ने सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। आशिकान रसूल झंडे, झंडियाँ, बैजेस और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। सामान खरीदने के लिए आया हूँ। बच्चों के लिए झंडियाँ वगैरह, झंडे वगैरह और रिबन वगैरह, जो उसे गली में खुचरागा भी करेंगे और सजाएंगे भी। दुकानदारों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है, लेकिन सजावटी अशिया की खरीदारी में कमी नहीं आई। हमारे पास सामान बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर तरह का सामान मौजूद है 12 रबी अव्वल का। और जो महंगाई का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। और लेकिन जो लोग नबी पाक से अकीदत रखते हैं, जो इन दिनों के अंदर मिलाद कराते हैं, वो आते हैं, लेकिन रेट की वजह से थोड़े मायूस जरूर होते हैं, लेकिन सामान जरूर लेते हैं।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मौका पर बड़े बड़े जुलूस बरामद होंगे, मिलाद की महफिलें सजेंगी, मसाजिद और बाजारों को भी सजाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। बुरेवाला में निजी स्कूल में महफिल मिलाद का इनेकाद, तलबा और तालिबात ने नात का हदिया पेश किया। बच्चों ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकारीर भी की। बच्चे ईद मिलादुल नबी को जोश व खरोश से मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बुरेवाला में निजी स्कूल में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने नात का हदिया भी दिया। बच्चों ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकारीर की। बच्चे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोश व खरोश से मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सोहना आयात सज गए ने गलियां बाजार। सरगोदा में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जारी। हर तरफ ईद का समा, शहरी सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। फिजा में दरूद सलाम की सदाएं गूंजने लगी। हर कोई अपने अपने अंदाज में अकीदत के फूल निछावर करने में मसरूफ है। सरगोदा में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मर्द, बच्चे और खवातीन सब झंडियां, बैजिज और माथा पट्टियां खरीदने में मसरूफ हैं। घरों, गलियों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। हर तरफ ईद का समा है। मेरे महबूब फरमाते, जब तुम पे मेरा फजल रहमत हो तो खुशियां मनाया करो। तो खुशी की कोई हद नहीं। कोई झंडा लेके अपने मकान को सजा रहा है, कोई लैट्रिन के जरिए, कोई लंगर पका के, कोई मिलाद की महफिल करवा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत से हर साल की तरह जुम्मातुल मुबारक के दिन 29 सितंबर को अजीम शान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में जुलूस निकलेगा। मुख्तलिफ रूटों से होता हुआ यहाँ पे इंशाल्लाह जुम्मा से पहले इख्तिताम पजीर होगा। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत ही निजात का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर अमल करके ही हम दुनिया और आखिरत में फलाह पा सकते हैं। कैमरामैन आबिद नफीस के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। घर बैठे रोजगार कमाने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए अच्छी खबर। महकमा सोशल वेलफेयर का हुनरमंद खवातीन को छोटे कर्जे फ्राहम करने का ऐलान। सनअतदार और दीगर स्किल कोर्सेज के इदारों में खवातीन को छोटे कर्जे दिए जाएंगे। खवातीन को आसान इकसात पर छोटे कर्जे दिए जाएंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब के मंसूबे पर काम की रफ्तार में तेजी आ गई। सेक्रेटेरिएट के फर्नीचर की खरीदारी के लिए 114 मिलियन की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटेरिएट और GOR में स्ट्रीट लाइट पोल्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। डाटा एक्सचेंज के कयाम के NTC को 21.8 मिलियन रुपए की अदायगी कर दी गई है। PHA को लैंडस्केपिंग की मद में 29.33 मिलियन रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब का मुल्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस का दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात पर ना होने पर प्रिंसिपल्स के खिलाफ एक्शन। प्रिंसिपल साइंस कॉलेज, सिविल लाइंस कॉलेज को शोकॉज नोटिस जारी। 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना है कि कॉलेजेस के मामलात में बद इंतजामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतजामी अफसरान कॉलेजेस के हालात बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब का मुल्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शबीर डोगर की खानपुर आमद। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा किया। स्कूलों में जारी तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लिया। AC का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सरकारी स्कूलों का दौरा किया। उधर मुजफ्फरगढ़ में पुलिस दोस्त इंटर्नशिप का आगाज। 40 से ज्यादा तलबा इंटर्नशिप का हिस्सा। DPO और मुतल्लिक अफसरान ने पुलिस वर्किंग बारे तलबा को आगाही दी। तलबा ने मॉडल थाना सिटी, खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ मरकज का भी दौरा किया। इंटर्नशिप मुकम्मल होने पर तलबा में असनाद भी तकसीम की गए। मुल्तान की तरक्याती स्कीमों में तेजी। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का डायरेक्टर डेवलपमेंट को तरक्याती स्कीमों की जांच पड़ताल का टास्क सौंप दिया गया। तफसीलात जानेंगे नादिर मजहर से। आगाह कीजिएगा नादिर। जी बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हाल ही में मुल्तान दौरे पर कमिश्नर मुल्तान आमिर परवेज़ खट्टक को ये हदायत जारी की गई हैं कि मुल्तान में दरबार शाह शम्स की तज़ीन व आराइश के लिए 490 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जो हमें बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि 12 सितंबर को जनाब वज़ीर आला पंजाब
वो दरबार शरीफ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट जो 490 मिलियन का है, यानी 49 करोड़ रुपए का है, और इसमें दरबार शरीफ पर ज़ायरीन की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ जो इंतज़ाम किए जाएंगे, जैसे दरबार शरीफ के बाहर टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, लेडीज़ की अलग, स्पेशल पर्सन के अलग और जेंट्स की अलग। इसी तरह दरबार शरीफ के जो बाहर अहाता है वहाँ पे सेमिनार हॉल और लाइब्रेरी बनाई जाएगी, और दरबार शरीफ का जो मेन पैसेज है उसको सेट किया जाएगा, और इस तरह दरबार शरीफ के अंदर जो है मस्जिद की और दरबार शरीफ की जो कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन का काम है वो किया जाएगा। इसके अलावा भी दरबार शरीफ पर सिक्योरिटी के हवाले से कंट्रोल रूम, उसकी अपग्रेडेशन और इस तरह दीगर इंतजाम किए जाएंगे, और जो इस प्रोजेक्ट से दरबार शरीफ पर आने वाले ज़ायरीन के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन सहूलियात जो है ना वो मुयस्सर होंगी। ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए महकमा औकाफ की तरफ से दरबार शाह शम्स को चंद ही सालों में प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। नादिर, बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में आलमी इदारा सेहत की EPI ट्रेनिंग LHVs को हिफाजती लेकाजात और पोलियो मुहिम की तरबियत दी गई। आसिम सिद्दीक से तफसीलात जानेंगे। जी, बच्चों को मोजी बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीकाजात ज़रूरी हैं और इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए WHO की जानिब से LHV की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गज़नफर शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से बेहतर किया जा रहा है EPI सिस्टम को ताकि बच्चों को हिफाजती टीकाजात बेहतर लग सके, और जो WHO की जानिब से ये तरबियती वर्कशॉप की गई है, आप क्या समझते हैं किस तरह ये मददगार साबित होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स की जितना भी टेक्निकल स्टाफ होता है, पैरामेडिक्स हो या डॉक्टर्स हों, जिनको सबको ज़रूरत रहती है, इसी हवाले से ये एक 2 रोज़ा जो है WHO के ताउन से एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग का इनकाद किया जा रहा है। ये 2 रोज़ा ट्रेनिंग है, WHO के कोऑपरेशन से ये चल रही है। इसमें तकरीबन अभी हमने फ़र्स्ट फेज़ में 20 LHVs को बुलाया है। उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग है स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए, चूँकि नई नई चीज़ें आ रही हैं, ऐप्स आ रही हैं नई, तो इनको नॉलेज को इम्प्रूव और रिफ़्रेश करने के लिए इसका बाकायदा इनकाद किया जा रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हेल्थ सर्विस डिलीवरी में ये हमारे लिए इंतहाई कारआमद साबित होगी। बिल्कुल, तरबियती वर्कशॉप जो है वो बेहतर तौर पर होगी। LHVs को मुकम्मल तौर पर तरबियत दी जा रही है कि किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, बच्चों को किस तरह से हिफाजती टीकाजात लगाने, और ख़ास तौर पर जो पोलियो मुहिम है उसमें उनका किरदार किस तरह से बेहतर हो सकता है, और जो इस LHVs इसमें तरबियती वर्कशॉप में शामिल हुए हैं उनको WHO की जानिब से तरबियती। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में पोलियो मुहिम 2 अक्टूबर से शुरू होगी। महकमा सेहत ने पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। 7,72,836 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे आशीष बाग से। आगाह कीजिए आशीष। 2 अक्टूबर से पोलियो मुहिम शुरू होने जा रही है। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से भी तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलियो टीमों की ट्रेनिंग के साथ साथ जो पोलियो वर्कर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जो ड्यूटियाँ हैं खसूसी तौर के ऊपर वो भी लगा दी गई हैं। बात करते हैं CEO हेल्थ हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे पोलियो के हवाले से? कैंपेन कब तक जारी रहेगी, कितना बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, और इस हवाले से वालिदैन को किस तरह से आगाही दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक डिस्ट्रिक्ट DG खां बल्कि पूरे पंजाब में पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हो रही है। डिस्ट्रिक्ट DG खां में 7,72,000 जो है ना हमारे टारगेट बच्चे अंडर 5 ईयर्स जो है ना, उनमें से हमारी UCs जो टोटल हैं वो 59 UCs हैं। 419 हमारे एरिया इंचार्ज हैं, और 2325 जो है ना हमारी टोटल टीम्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। 112 हमारी फिक्स टीम है। हमारी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी रेडीनेस भी है पोलियो के हवाले से। तो वालिदैन से सिर्फ जो रिक्वेस्ट है वो यही होगी कि पोलियो की टीमें आपके घर पर जब आए उनके साथ ताउन करें। जी बिल्कुल, पोलियो की टीमें जब घर पर आए उनके साथ ताउन किया जाए। DG खान डिस्ट्रिक्ट में 7 लाख से ज़ायद बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, और इस हवाले से कोहे सुलमान। आशीष बाग, बहुत शुक्रिया। पोलियो से बचाव का मिशन THQ अस्पताल चौहानिया में आगाही सेमिनार। पोलियो मुहिम 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खानेवाल में 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बोटर से। अमजद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में आज पोलियो के हवाले से एक सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसकी जो सदारत है वो असरत जानिया आदल उमर साहब ने किया है। और इसके जो मेहमान खसूसी और थे वो DHO डॉक्टर फजल रहमान और DDHO डॉक्टर फरहान रंधावा साहब भी इधर मौजूद थे। मेरे साथ इस वक्त फजल रहमान साहब मौजूद है। मजीद इनसे बात करें। सर, बताइएगा कि आज के सेमिनार के हवाले से क्या पैगाम देंगे, और इसके अलावा ये बताएं कि पोलियो मुहिम किस दिन शुरू हो रही है और क्या टारगेट रखा गया है। जी, जैसा कि आपको पता है कि ये हमने एक एडवोकेसी मीटिंग का इनेकाद किया गया आपके THO हॉस्पिटल जहानिया में। इसका मकसद ये है कि जो आने वाली कैंपेन जो कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक पूरे मुल्क में मनाई जा रही है, तो उसके हवाले से लोगों में ये आगाही अवेयरनेस है कि अपने तमाम पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की जो अजाफी खुराक है विटामिन ए की वो दी जाए। अब इस जो पोलियो में हमारे तकरीबन ज़िला में तकरीबन जो हमारा टारगेट है वो 6 लाख बच्चे हैं जिनको हमने पोलियो के कतरे पिलाने हैं। तो इस एडवोकेसी के इस सेमिनार के हवाले से हम लोगों में ये आगाही देना चाहते हैं कि आप प्लीज़ आप हमारी हेल्थ की टीमों से तावन करें और 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक अपने 5 साल तक के तमाम बच्चों को कतरे पिलाएं और इस जो मूजी मर्द है इससे महफूज बनाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर फजल रहमान साहब ने बताया है कि जो पोलियो के हवाले से जो 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक मुहिम जिले में मुहिम शुरू की जाएगी, जिसमें जो 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और इनका ये पैगाम है तमाम वालिदैन से कि अपने 5 साल के बच्चों को लाजमी तौर पर जो पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इस मूजी मर्ज से छुटकारा। अमजद, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल को डायरेक्टर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान तैनात कर दिया गया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल CCRI मुल्तान में फराइज सरअंजाम दे रहे थे। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद इमरान का मुल्तान पुलिस लाइंस का दौरा। बटालियन 3 पहुंचने पर बटालियन कमांडर मोहम्मद सलीम खान ने उनका इस्तकबाल किया। SSP ऑपरेशंस ने बटालियन के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि पंजाब कांस्टेबलरी ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा किया है। जवानों से मुलाकात की और उनकी पेशा वाराना फराइज की अंजामदही को भी सराहा। डिस्ट्रिक्ट बेनेवलेंट फंड बोर्ड डेरा गाजी खान का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद हसन चांडिया ने इजलास की सदारत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अथर सेखानी समेत दीगर ने शिरकत की। मंथली ग्रांट, तदफीन, मैरिज और तालीमी स्कॉलरशिप ग्रांट केस का जायजा लिया। अप्लाई करने वाले सरकारी मुलाजिमीन के लिए 4 करोड़ से ज्यादा रकम तकसीम करने की मंजूरी दे दी। DC का कहना था कि रकूम की तकसीम में मेरिट पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने लाइफ स्टॉक कम्प्लेक्स मुल्तान का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी मियां नासिर जमाल ने सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DC लाइफ स्टॉक डॉक्टर इजाज महमूद, डायरेक्टर मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद सब्तैन ने भी शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने लाइफ स्टॉक कम्प्लेक्स मुल्तान का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने शजरकारी मुहिम को फरोग देने के लिए लाइफ स्टॉक कम्प्लेक्स के लॉन में यादगारी पौधे भी लगाए। ये जो कम्प्लेक्स है, ये कम्प्लेक्स भी उसी एक लाइफ स्टॉक की जो प्रोपोगेशन और लाइफ स्टॉक की बढ़ोतरी और लाइफ स्टॉक का हमारी इकोनॉमी में जो रोल को जिस तरह बढ़ रहा है, अब इस तरह बढ़ता बढ़ता अब हम वैसे भी इस पे 62.68% पे चलेंगे, जो हमारे इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब का कहना था कि 111 मिलियन से बनने वाले लाइफ स्टॉक कम्प्लेक्स से किसानों और मुलाजमीन दोनों को फायदा होगा। मुख्तलिफ डिवीजन्स में लाइफ स्टॉक कम्प्लेक्स के साथ साथ दीगर इकदाम भी जारी हैं। मुल्तान का लाइफ स्टॉक कम्प्लेक्स है, ये 111 मिलियन का बना है, कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हो गया है। ये इसका जो जेस्टेशन पीरियड था वो 2 साल का था और इसमें हमारे पहले दफातर जो थे, हमारा डायरेक्टर मुल्तान तो जो बैठते थे वो किराए की बिल्डिंग थी, उनकी अपनी नहीं थी, हमारी अपनी ये बिल्डिंग है। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने महकमा लाइफ स्टॉक के पोल्ट्री फार्म का भी दौरा किया। कैमरामैन हारून रमजान के साथ अली रियाज, मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।